Hello students. So today we will deal with lesson 16 and its title is The Victory. Okay. This story, The Victory, is written by Manorama Zafar. Manorama Zafar is an Indian author and critic. So she is an Indian author, Critic again, I told you, like, critic is someone who points out to the merits and demerits of any works, how well it is perfect, where it is lacking, and all such things are pointed out by critic. Manorama Zafar is an Indian author and critic. She has published more than 65 children's books and several articles. Her books have powerful illustrations and strong messages for the readers. Flowers and I and Lal Topi are some of her famous works. So Manorama Zafar has written more than 65 books for children. So 65 books are credited into kids literature, and these are her two major books, Flowers and I and Lal Topi. She always writes with a strong message for everyone. There is a moral message generally found in her writings. So here again we are getting a moral lesson through the story of Alexander the Great. Now I'll give you the central idea of this story. Okay, this story is about Alexander the Great. Alexander was a great king in the earlier times. Okay, and he was a great king in the earlier times, and he was the great king in Greece. Greek means he was a Greek king, or he was the great king in Greece. What he wanted actually, he was very ambitious and he wanted to conquer the golden bird. India was known as golden bird at that time, and he wanted to conquer that golden bird. And following that ambition, he traveled with his army to India. Okay, and what all he faced in India, whomso he met in India, what is the learning or lesson he got from India, that is what we will find in this story. The central idea of this story is that you can conquer something not by robbing or stealing, but by earning it. You can conquer something by earning it, but not by robbing or stealing. If you're robbing something, that means that is not yours. It was of someone else. So based on this message and this theme, this story is written. So I'll give you a summary of this story in Hindi first. See, Alexander एक बहुत महान और बहुत बड़े राजा थे. इनकी जो बादशाहत थी वो बहुत ही बड़ी थी. इनके जो इनका पावर था वो भी बहुत दूर दूर तक सबको पता था कि कितने पावरफुल हैं. फिर ये इनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था, या इनके अंदर जो डिटर्मिनेशन था, एम्बिशन था, उनके अलेक्जेंडर के सपने थे कि वो पूरे विश्व को अपने अंदर कर लें, या पूरे विश्व को ये जीतना चाहते थे. और जब उन्हें पता चला कि भारत के तरफ, या भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो उन्होंने अपने जनरल्स को बोला, या अपने आर्मी वालों को बोला कि अब हम भारत पे आक्रमण करेंगे. तो उन्होंने जो सोचा उस चीज पे उन्होंने अमल भी किया. वो आए भारत, सिंधु नदी के रास्ते या उन घाटी के रास्ते इंडिया आए, और इंडिया में आकर उन्होंने इंडिया के उनकी यहाँ इंडिया में जैसे ही एंट्री हुई तो इंडिया में उनकी किंग पुरु से मतभेद हुई. वो किंग पुरु से लड़े, किंग पुरु हार गए और किंग पुरु को उन्होंने अपने कैद में ले लिया. फिर जब पहला दिन हुआ बैटल का, या जो किंग पुरु के साथ उनका बैटल हुआ, युद्ध हुआ, तो वो उस युद्ध में अलेक्जेंडर जीत गए. पहले ही जीत से वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और अपनी खुशी में, या एक अपनी खुशी की मदहोशी में वो आगे चलते गए. फिर रात के समय में उनके सारे आर्मी मैन, सारे जनरल सोए हुए थे, तो उन्होंने अपने घोड़े को लिया और चुपके से इंडिया की बाकी जो उनके आसपास का इलाका है इंडिया का, उसकी सैर पे निकल पड़े.
जब वो सैर पे निकले तो उन्होंने देखा कितने ही बच्चे रो रहे हैं, कितनी ही औरतें विलाप कर रही हैं, वो कितना ही औरतें रो रही हैं। वो सब चीज़ें देख के इनका दिल नहीं दहला, इनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ा अलेक्जेंडर को। जैसे ही वो थोड़ा और आगे आते गए तो उनके सामने कुछ पंडित लोग दिखे या कुछ प्रीस्ट लोग दिखे, संत लोग। ये पंडित लोग क्या कर रहे थे, अपने यज्ञ में बैठे हुए थे। तो जब अलेक्जेंडर ने उनको देखा कि वो यज्ञ में बैठे हुए हैं और उनके शरीर में अपर बॉडी में कोई कपड़े नहीं हैं, तो इतना ठंड का समय और इनके पास कपड़े नहीं हैं, वो तुरंत वापस गया अपने एरिया में या जहाँ उनका कैंप लगा हुआ था, वो वहाँ वापस गया और कैंप से फिर इनके लिए मोटे मोटे कंबल लाए। तो अपने आर्मी जनरल्स के साथ वो आए और इनके लिए मोटे मोटे कंबल लाए। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो ना कुछ ऐसे कोशिशें करने लगे कि वो जो पंडित लोग हैं वो उन्हें सुने। बट पंडित लोग अपने यज्ञ में, अपने तपस्या में इतने मशरूफ थे या इतने एब्जॉर्ब्ड थे कि वो अलेक्जेंडर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अलेक्जेंडर को इन सारी चीज़ों का गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना महान हूँ और इन लोग मेरे तरफ ध्यान कैसे नहीं दे रहे हैं। अलेक्जेंडर ने जानबूझ के घोड़े को मारा कि घोड़ा खांसे या आवाज़ निकाले, फिर खुद खांसने लगे या फिर खुद नीचे उतरे और आवाज़ करने लगे। तो मतलब अलग अलग टाइप की आवाज़ें कर रहे थे ताकि इनको लगे कि हाँ, मैं आया हूँ, मैं अलेक्जेंडर महान हूँ और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे सामने और तुम अपना यज्ञ कर रहे हो, ऐसा कैसा हो सकता है। बट स्टिल वो अपने जो पंडित लोग थे वो अपने यज्ञ में पूरे थे, तो उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसने खुद ने ये बोला कि मैं अलेक्जेंडर महान हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या, तो मैं फेमस अलेक्जेंडर हूँ, उन्होंने कहा। तो फिर योगी लोगों ने, इन लोगों ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर थोड़ा शॉक हुआ कि मैं इनकी मदद करने आया हूँ, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मेरी क्या मदद कर सकते हैं। फिर उसने बोला कि मैं अलेक्जेंडर हूँ, मैं तुम्हारे हिंदुस्तान पे कब्जा करने आया हूँ, कॉन्कर करने आया हूँ। और ये एकदम वो गर्व के साथ कहने लगा। और क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर मतलब बिना कपड़े देखा तुम्हें, तो इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें ये सब ब्लैंकेट्स देने आया हूँ। फिर जो उनमें से एक बड़ा योगी था वो उठा, अलेक्जेंडर पे एक नज़र मारी और अलेक्जेंडर के कंधे में हाथ रख के उसने बोला कि तुम फेमस अलेक्जेंडर हो जो सारे कंट्रियों में, सारे मतलब देशों में पूरे चोरी कर करके या डकैती कर करके अपना राज जमा रहे हो, क्या तुम ही वो अलेक्जेंडर हो। फिर जो योगी थे, जो पंडित थे, वो हंस पड़े। फिर उन्होंने बोला कि एक चोर कैसे बादशाह हो सकता है, या एक चोर, हाउ कैन अ रॉबर बी अ कॉन्करर, एक चोर कैसे किसी पे विजय हासिल कर सकता है और किसी को कुछ दे सकता है। इस चीज का मतलब, ये चीज उसने सुनी और वो शॉक में आ गया अलेक्जेंडर की, ऐसा क्या मतलब। वो इतनी जो थॉट था इतना डीप था कि अलेक्जेंडर चुप रह गया और वो कुछ भी वापस बोल नहीं पाया। फिर अलेक्जेंडर ने क्या किया, इस सेंट को सल्यूट किया, अपने घोड़े पे वापस गया, अपने कैंप पे वापस गया और उसने उसी समय डिसीजन ले लिया कि मैं और आगे कॉन्कर नहीं करूंगा इंडिया को। और इवन जो किंग को उन्होंने कैद में रखा था, उन किंग पुरु को भी उन्होंने रिहा कर दिया। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी इन हिंदी. I think it's clear to you. A central idea I had given to you in English also. Now in the next video, we'll go through a line by line reading of this chapter.